Good morning, students. Today I am going to teach you Chapter 1 Computer World. In this chapter, we will learn about three topics. First, what is computer? Second is uses of computer. And third, uses of computer at different places. So, before telling anything, I hope I have taught you in previous classes what is computer. So you already know about the computer. So again I am teaching to you what is computer. A computer is an electronic machine that receives data, processes data, stores data and produces a result. It means computer is इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और उसके बाद हमें रिजल्ट शो कराती है। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में अब जानेंगे। अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर मैनी सिंपल टास्क लाइक ड्राइंग पिक्चर्स। I know everyone like to draw pictures. So you can draw pictures on the computer. Next is adding numbers. Adding numbers means you can add numbers also on the computer. Like 2 plus 2 is equal to 4. That you can do on the computer. Now, writing letters. If you want to write letters to your friends, to your parents, to your guardians, that you can write on the computer. Watching movies and cartoons. I know everyone like to watch cartoons and movies. So, cartoon and movies you can also watch on the computer. Playing games. I know you like to play games. Then you can also play games on the computer. Listening to music. If you want to listen music, you can listen music on the computer. So today we can see computer everywhere. आजकल हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर जगह जगहों पे यूज़ हो रहे हैं। We find them at home. जैसे शायद किसी किसी के घर पे भी आपके घर ना कंप्यूटर होंगे। देन स्कूल्स में भी कंप्यूटर होते हैं, मार्केट में, हॉस्पिटल्स में एंड मैनी अदर प्लेसेस। अलग अलग जगहों पे भी हमने कंप्यूटर्स को देखा है। नाउ लेट्स सी एंड फाइंड द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस। So, uses of computer at different places. जगह जगह पे कंप्यूटर का क्या यूज़ है अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट इज़ होम। घर पे कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एट होम कंप्यूटर हेल्प अस इन मैनी वेज। घर पे कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद करता है। जैसे इट हेल्प्स us to do our homework. If you want to do your homework, you can do homework with the help of computer. Second, we can listen to song, draw and color. If you want to listen music and songs and draw and color the pictures, then you can also do on computer. We can send and receive messages through emails. If you want to send message and get message, receive message, you can get or send message via emails. Now we can play games. If you want to play games, you can play games on the computer. Now second, schools. In a school, a computer help us in many ways. So schools में भी कंप्यूटर के यूजेस हैं और उन यूजेस के बारे में हम जानेंगे
कीपिंग डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं उन सब की डिटेल्स को सेव करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग स्कूल्स में करते हैं। सेकंड, कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मीन्स आप सब स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप सबकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। नाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड एंड एग्जामिनेशन पेपर्स। टीचर्स जब रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं ना आपके रिज़ल्ट, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं। और जो पेपर आपको देते हैं ना, पेपर जब एग्ज़ाम होते हैं उनको भी हम कंप्यूटर से टाइप करके आपको देते हैं। टू टीच स्टूडेंट, आपको पढ़ाते हैं ना कंप्यूटर, आपको पढ़ाने के लिए भी यूज़ में कंप्यूटर आता है। टू प्रिपेयर फीस बिल्स, जब आपके पेरेंट्स फीस भरने आते हैं ना, उस सब की भी जानकारी है और बिल हैं, वो सब हम कंप्यूटर से आपको देते हैं। नाउ शॉप्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सो इन शॉप्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वी यूज़ कंप्यूटर like to prepare bills. Whenever you go to shop for shopping, that shopkeeper give to you bill, no? So आपको जो बिल देता है वो भी कंप्यूटर से बना के आपको वो बिल देता है। कीपिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड कस्टमर्स, जो भी उसकी दुकान में सामान है उस सब की जानकारी, जैसे उसकी प्राइस लिस्ट और कस्टमर, उन सब की जानकारी वो शॉपकीपर्स जो है उसके कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। टू प्रिपेयर प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट मीन्स जिस सामान की जितने प्राइस है वो सब भी उसके कंप्यूटर में वो सेव हो रखी होती है। नाउ ऑफिसेस। इन ऑफिस वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर। ऑफिस में भी कंप्यूटर का यूज़ है। लाइक टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, फॉर टू सेंड एंड रिसीव मैसेज, to type and print documents, to keep office records. So अगर उनको मैसेज सेंड करना है और मैसेज लेना है, उस सब के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और कुछ भी उनको टाइप करना है या प्रिंट आउट लेना है तो वो भी वो कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। टू कीप ऑफिस रिकॉर्ड्स, ऑफिस का जो भी डाटा है, रिकॉर्ड्स है, वो अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, इसीलिए भी ऑफिस में कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। नाउ हॉस्पिटल्स। इन हॉस्पिटल्स वी यूज़ कंप्यूटर इन मैनी वेज। फर्स्ट इज़ टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए भी वो लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस होते हैं ना पेशेंट्स के, उन सब की जानकारी है और वो कैसे किया जाता है, वो सब की वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। नाउ टू प्रिपेयर बिल्स, जब कोई जो पेशेंट आता है एडमिट होने के लिए, देन वो जब फिर जाता है कि उसका कितना बिल हुआ, वो सब वो कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं और जब वो जाते हैं उनको वो बिल देते हैं। नाउ टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स एंड मेडिसिन्स। डॉक्टर्स की जानकारी, स्टाफ मेंबर्स की जानकारी एंड मेडिसिन्स की जानकारी वो अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। टू डू मेडिकल टेस्ट, और कुछ भी मेडिकल टेस्ट अगर आप कराने जाते हैं तो वो सब सारे टेस्ट की इन्फॉर्मेशन वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव करके रखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट बैंक्स। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स? In banks, we use computer in many ways. So first is to maintain the accounts of customers. जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं उन सब की अकाउंट की जानकारी, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वो अपने कंप्यूटर में सेव रखते हैं। टू विड्रॉ मनी, और पैसा निकालने के लिए और जमा करने के लिए वो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टू डिपॉजिट मनी थ्रू ATM, अगर आपको मनी निकालना है या जमा करना है ATM से, वो भी कंप्यूटर की हेल्प से होता है। नाउ एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। इन एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस वी यूज़ कंप्यूटर। फर्स्ट टू बुक एंड कैंसिल टिकट, अगर आप जब कहीं भी बाहर जाते हो
तो आप ट्रेन या फ्लाइट से जाते हो ना, तो उन सब की जो टिकट होती है वो भी हम कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। जैसे कोई भी चाहे ट्रेन हो चाहे एरोप्लेन हो, उन सब की आने की और जाने की, वो सब की जानकारी भी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। जैसे कौन सी ट्रेन और कौन सी फ़्लाइट कब आएगी, कितने टाइम पे आएगी, कब जाएगी, वो सब। नाउ नेक्स्ट टू कीप ट्रैक और लोकेशन, स्पीड एंड डायरेक्शंस। इट मीन्स जैसे हम ट्रेन की डायरेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं, लोकेशन भी हम चेक कर सकते हैं कि अभी ट्रेन कौन से स्टेशन पे पहुंची है, यहाँ पे अपने स्टेशन पे कब पहुंचेगी, दूसरी जगह जहाँ हमको जाना है वहाँ पे कब कितने बजे पहुंचेगी, वो सब की जानकारी भी हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर हेल्प्स आर्किटेक्ट्स इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड हाउसेस। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो मकान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, तो वो सब जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनका जो डिज़ाइन है वो कंप्यूटर से बनाते हैं। कंप्यूटर हेल्प्स इंजीनियर्स इन डिज़ाइनिंग। जो इंजीनियर्स होते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे किसी कार की, एरोप्लेन की एंड अदर मशीन्स की। वो जो डिज़ाइन होती है वो कंप्यूटर से बनाते हैं। कंप्यूटर हेल्प्स फैशन डिज़ाइनर्स टू डिज़ाइन क्लोथ्स। जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो जो कपड़ों की डिज़ाइन है वो भी कंप्यूटर से बनाते हैं या कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। कंप्यूटर हेल्प्स टू डिज़ाइन एंड प्रिंट द बुक्स। जो बुक्स आप पढ़ते हो ना, वो सब भी कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन की जाती हैं और प्रिंट की जाती हैं। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प अस इन लर्निंग न्यू स्किल्स लाइक टू ड्राइव कार और टू fly an aeroplane, to learn different languages and cooking. Computer also helps us learning new skills. जो भी किसी की जानकारी है, कोई भी नई जानकारी है, वो भी आप सीख सकते हैं। जैसे ड्राइव अ कार, अगर आपको कार चलाना सीखना है तो वो भी आप चलाना सीख सकते हैं। फ्लाई एन एरोप्लेन, अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना सीखना है तो वो भी आप कंप्यूटर से नेट कनेक्ट करके सीख सकते हैं। टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कुकिंग, अगर आपको अलग कोई लैंग्वेज सीखनी है वो भी आप सीख सकते हैं। या कुकिंग, खाना बनाना सीखना है, वो भी आप सीख सकते हैं। सो नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू about the exercise. So first is write T for true and F for false. So first is computer do not help us in the school library. जैसे कि मैंने बताया था कि कंप्यूटर्स को लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? कि जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर डू नॉट हेल्प अस इन द स्कूल लाइब्रेरी, so it is false. Second is computer help us in the playing games. So you like to play games, so you can play games on the computer, so it is true. Now computer do not help us to maintain records in bank. जो बैंक्स में अब आप जाते हैं तो बैंक्स में जो कस्टमर्स के डिटेल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब उसमें सेव रखते हैं ना। बट यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर डू नॉट हेल्प अस टू मेंटेन रिकॉर्ड्स इन बैंक्स, सो इट इज़ फॉल्स. नाउ कंप्यूटर हेल्प्स अस टू प्रिपेयर प्राइस लिस्ट इन शॉप्स. मीन्स जब आप शॉप्स पे जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उस सब की जानकारी वो कंप्यूटर में रखते हैं ना सेव, सो वही यहाँ पे बता रहे हैं. So it is true. Now last, doctors do not use computer. जो डॉक्टर्स होते हैं वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं ना, सो बट यहाँ पे लिखा है डॉक्टर्स डू नॉट यूज़ कंप्यूटर, सो इट इज़ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. टीचर्स यूज़ कंप्यूटर टू टीच स्टूडेंट्स. टीचर्स क्यों यूज़ करते हैं कंप्यूटर को? टू टीच स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. Next is a computer help us in keeping details of books in a desk library.
या आपने देखा है ना स्कूल्स में लाइब्रेरी जो बुक्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं, कंप्यूटर में। सो नेक्स्ट इज वी प्ले गेम्स एंड लिसन टू म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर। नाउ वी लर्न न्यू skills on computer. So next, desks use computer for medical test. Doctors use computer for medical test. So this exercise you have to write in your book. Question answer I will give you in your WhatsApp group. Okay.